Good morning, student. Yesterday we completed our poem geography lesson. As I have told you that our poem is not connected with any SS lesson, but the poem tells us simply about the geometrical design of the earth. That when we go to a height, then we can observe that what type of the structure or the geometrical design does our earth has. But the poet is not able to understand why human beings have constructed walls and boundary between different states or the countries. Now we will discuss about our summary, glossary, and there are not so many question answer in this poem. Only one or two question answers are there. Otherwise there are the MCQs. So we will complete our exercise. First, the summary of the poem. The poem is about the way the earth looks from different altitude. Altitudes होते हैं height. It is divided into three parts. We have been given three stanza in the poem, and all the stanza tells us about the different views which has been taken from a height. When the jet starts to climb up in the sky, it seems that city did not grow as per proper planning. It doesn't have any particular style. वो कह रही हैं कि जो ये पोएम है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई, यानी कि वहाँ पर तीन स्टेंजाज हैं। पहले स्टेंजा में हमें बताया गया कि जब जेट जो था वो स्काई में जाना शुरू करता है तो ऐसा लगता है जो शहर है वो एक प्लानिंग के साथ, यानी कि बिल्कुल एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रो नहीं कर रहा है, वो डेवलप नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि उसका कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। When the jet climbs higher up to about 10,000 feet, it is clear that water fulfilled the necessities like agricultural, transport, and others. He found that valleys were populated, which met the necessities of the people. जब जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब ये समझ में आता है कि जो शहर हैं वो नदियों के किनारों पर क्यों बसे हुए हैं। बिकॉज वाटर इज़ द most important source for life. It is necessary for agriculture, transport and others household works. यानी कि ये दूसरे कामों के लिए ज़रूरी है, ये खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए पोएट कहता है कि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड नियर द वैलीज एंड द रिवर्स। की जो शहर है या जो लोग हैं वो ज़्यादातर किसी वैली के किनारे, वैलीज में या ज़्यादातर नदियों के किनारों पर क्यों बसते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो लोगों की नेसेसिटीज़ को पूरा कर देता है। क्योंकि पानी की जहाँ समस्या नहीं होती वहाँ खेती जो है वो अच्छे से की जा सकती है। तो लोग इसीलिए वो कहते हैं कि इसलिए लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरी हो जाती है। When the jet went above 6 miles, there is more water than land on earth. But the poet is unable to understand the tendency to build borders to create fences. Fences होता है दीवार, walls. He reflected that people on earth are selfish and they hate each other. जब ये जेट 6 मील की ऊपर तक जाता है तो वो देखते हैं, यानी कि जो पोइट हैं जुल्फ़िकार, वो जुल्फ़िकार घोष जो हैं वो इस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि इस अर्थ पर लैंड की बजाय पानी ज़्यादा है। लेकिन पोइट जो है वो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने बॉर्डर क्यों बनाई हुई हैं, उन्होंने दीवारें क्यों खींच ली हैं, वो एक दूसरे से जेलस क्यों फील करते हैं, वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों कर रहे हैं, एंड वाई दे आर किलिंग ईच अदर, और वो एक दूसरे को ख़त्म क्यों कर रहे हैं, मार क्यों रहे हैं। यानी कि द पोइट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वायलेंस एंड द हेट among the human beings, but he is able to understand that how the cities are constructed when he observed from a particular height and why the people are settled near the valleys and the rivers. Now there are our glossary word meaning. Only 4 word meaning are there. Spring, rise, उठना, इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, जिसको हम एस्केप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। हैव हैजर्ड्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी कि जिसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती है, प्रॉपर स्टाइल नहीं होता है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। डिलिनिएटेड होता है शोन, यानी कि जो दिखाया जाता है। नाउ देयर आर द क्वेश्चन आंसर. Question answer. You will write the questions from your textbook. There are only 4 questions and 3 questions are very easy, and
Two questions are MCQs. The first question is, find three or phrases in stanzas 1 or 2 which are likely to occur in a geography lesson. यानी कि हमारे जो स्टेंजर्स दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपको फ्रेज ऐसे निकालने हैं जो शायद किसी ज्योग्राफी लेसन में हो सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वैलीज वर पॉपुलेटेड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, स्केल्ड 6 इंचज टू द माइल। यानी कि ये जो फ्रेजेज हैं ये किसी ज्योग्राफी लेसन में हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो MCQ, जो सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। वो कहते हैं कि जब हम किसी एरोप्लेन की विंडो से देखते हैं तो शहर वो कैसे दिखाई देते हैं, जो शहर हैं वो दिखाई देते हैं कि एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, कि ये जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से ये डेवलप हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि जो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं इसमें से लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी के लॉजिक को यानी कि उसके पॉइंट्स को कौन क्लियर कर रहा है, उसमें आपका जो देयर आर 5 स्टेटमेंट एंड 3 आर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जो हमें ज्योग्राफी के लॉजिक के बारे में बताती हैं। दैट मीन देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। उसके बाद जो थर्ड है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। एंड उसके बाद जो हमारी फोर्थ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। दीज आर द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। Then the fourth and the last question, mention 2 things that are clear from the height, not clear from the height। यानी कि इसमें 2 पार्ट है, एक तो आपको बताना कि हाइट से क्या क्लियर है और एक आपको बताना हाइट से क्या क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले क्लियर क्या, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हाइट दैट वैलीज आर पॉपुलेटेड एंड द अर्थ इज राउंड। एंड व्हाट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, दैट why the human beings build walls across the cities and why they hate and kill one another। वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं, वहाँ पर वायलेंस क्यों है, ह्यूमन बींग्स ने बॉर्डर या बाउंड्रीज क्यों बनाई है, ये समझ नहीं आता है। लेकिन ये समझ में आता है कि वाई द वैलीज आर मोर पॉपुलेटेड, बिकॉज द वाटर इज़ द मेन रिसोर्स टू फुलफिल द नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अर्थ इज round, and from a particular height we can also observe that earth is as developed as necessary, कि जैसी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से ये डेवलप हो चुकी है। So the students, you will write the summary, word meaning and the question answer in your fair notebook and send the homework to me for your checking. Thank you.